wait for like a few minutes for people to join in, and then we start, because I've just sent the message. Are you all set to give the examination after a week, or am I making you nervous? Okay, I think we will start. Okay, I can see 7 people online. Yes, it's okay, we can start, so people will join in. If your friends are not there for the lecture, or they're planning to skip the lecture, I would just advise you to call them and tell them that the beginning I'm going to give you as to how to write a paper. It's very, very important. If they don't want to attend, it's okay, they can not attend, but at least attend the first few minutes of the lecture, because it's going to be really helpful for your examination. Okay, so now I'll start, no waiting further. First thing first, your exam is going to be your second paper, it's not going to be your first paper. So we'll quickly discuss as to what all things you can do when you are writing your paper, how to prepare in the days when you have your leave. So it's going to be your second paper. तो अगर first paper अच्छा जाता है नहीं जाता है, it doesn't matter. Just what is more important is how you, if you can't hear me, just let me know. I think there's some problem with the, I think now it's fine. Yes, I can see everything now. Yeah, so first paper अच्छा जाता है नहीं जाता है, difficult है easy है, doesn't matter. Once you have given your paper, no discussing your paper with anyone, no coming home checking your books कि मैंने सही लिखा है गलत, no sitting and counting marks, अच्छा इसमें 3 मार्क मिलेगा, इसमें 6 मार्क मिलेगा, मेरे हिसाब से मेरे को 60 मिलेगा, मेरे हिसाब से मुझे 70 मिलेगा. No discussing your paper, no checking your paper, nothing doing. एक बार आपने पेपर दे दिया है, you are not going to be able to change anything that you've given. So no discussing it with anyone. Come home, have your food, and if you want to, I would normally take like a half an hour rest and then start studying for the next paper. So take that half an hour break and then start studying for the नेक्स्ट पेपर जो भी आपका है. फॉरगेट अबाउट व्हाट इट इज़. फाइनल में जो अकाउंट्स का पेपर है ना, वो बहुत ही सिंपल आया था. इंटर में अकाउंट्स का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया था. एंड एवरी ईयर एवरी एग्जाम यू विल सी दैट वन पेपर इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड इट इज़ ऑलवेज द केस विथ CA एग्जाम्स. लाइक मैंने जब भी दिया था, मेरा फर्स्ट पेपर वॉज लाइक सुपर डिफिकल्ट, बट वो लोग फिर अगर डिफ़िकल्ट पेपर होता है तो मार्क्स का चेकिंग भी लीनिएंट करते हैं. तो अगर पेपर डिफ़िकल्ट है, डोंट थिंक ऑफ ऑप्टिंग आउट, ये वो सब नहीं करने का. एग्ज़ाम में बैठने का डिसाइड किया है तो चुपचाप एग्ज़ाम में बैठने का और एग्ज़ाम लिख के आने का, जैसा भी गया पेपर दे के आने का. वंस यू कम होम, नाउ इफ़ यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर लॉ, तो आप पहले क्या करोगे, 1.5 डे आपके पास है, तो आप 2 to 5 का पेपर लिख के आओगे. 5 बजे आओगे, 6 साढ़े 6 को आपने 6:30 you decide to start studying. What we'll first do is, I'll share this thing with you if you want, or you can write it down, whatever is comfortable with you. So the first thing that you will do is आप first आके communication start करोगे पढ़ने का, and not law. तो communication in my view, this is my view, you can obviously change according to your liking disliking. तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है. आप ऑलरेडी एक पेपर सुबह से पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम भी लिख के आए हो, तो यू आर टायर्ड. सो इट्स रिलेटिवली ईजियर, बट यू ऑल्सो हैव टू स्टडी बिकॉज इट्स अ 40 मार्क्स का सवाल. सो यू विल हैव टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर इट. तो थोड़ा लाइटर है कंपेयर टू लॉ, सो आई प्रिफर टू स्टार्ट विद कम्युनिकेशन. अगर आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, and you will have still some more time because of how you have prepared, or whatever you've done in class and stuff, then you can do LLP Act और Companies Act, दोनों में से एक सेम डे रात को. तो यहाँ पे अगर आपको LLP या Companies Act करना है तो you can do that. Okay, then next day when you get up, you're going to be very fresh because you've started a new day. सो फर्स्ट थिंग अपन करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो यू विल स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच विल बी फॉलोड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट. 3 एक्ट एटलीस्ट आपको वो दिन ख़त्म करना ही है, नो मैटर वॉट. देन
ऑन डे 3, दैट इज़ ऑन योर एग्ज़ाम डे, 2 बजे के पहले। अगर आपका LLP एक्ट हो गया है तो ठीक है, बट नहीं हुआ है तो आपको वो भी करना है और कंपनीज एक्ट भी करना है। एंड देन यू हैव टू सिट एंड रिवाइज, बिकॉज लास्ट डे पे जो पढ़ते हैं ना वो बहुत याद रहता है ना, सबको ऐसा होता है। सो जो भी अपन ने पूरा किया है ना इन दीज 3 days, so अपना समरी नोट्स आई हैव गिवन यू व्हेन यू आर अटेंडिंग क्लासेस, तो यू हैव दो समरी नोट्स। टुडे आई हैव सम चार्ट्स एंड ऑल। अगर आपको न्यू नहीं देखना है, आपको आपका जो समरी नोट्स अपन ने क्लास में लिखा था, इफ़ यू वांट टू गो हेड एंड सी दैट, यू कैन सी दैट, यू डोंट हैव टू सी द न्यू नोट्स, or you can see the new charts which I have prepared, and if you want to study from there you can do that also. So last day जो होगा उसमें आप LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट करोगे, एंड यू विल रिवाइज द एंटायर लॉ, एंड इफ टाइम परमिट्स यू कैन डू कम्युनिकेशन एज वेल, डिपेंडिंग ऑन हाउ। कम्युनिकेशन इज बेसिकली इंग्लिश, सो इफ यू आर कंफर्टेबल तो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल है तो, एंड इफ यू वांट टू रिवाइज समथिंग तो यू कैन रिवाइज इट ऑन द लास्ट डे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। अभी इसके अंदर मैम कैसे पढ़ने का, हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो कम्युनिकेशन तो आपको जो सिखाया है, थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करना है, वैसे यू विल हैव टू डू, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी रिमेंबर्ड एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू टॉपिक्स वे यू हैव लाइक जो फर्स्ट चैप्टर है, या देर आर फ्यू चैप्टर्स वे देर आर गोइंग टू बी लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो अगर वैसे टाइप का क्वेश्चंस है जिसका आपको स्टडी करना है तो आप वो कर सकते हो, एंड अदरवाइज यू विल हैव टू सॉल्व अ फ्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, वो सब आप करोगे तो आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन। कमिंग टू लॉ, लॉ में आप क्या करोगे, अपना जो ये है टेक्स्ट बुक है उसमें पूरा समरी पॉइंट्स में ही दिया है जहाँ से आपने पढ़ा है। डोंट टेक एनी न्यू मटेरियल, डोंट स्टार्ट विथ एनी न्यू नोट्स ऑन द लास्ट डे। फ्रेंड बोलेगा अरे ये नोट्स में से बहुत अच्छा रिविजन होएगा, लास्ट डे पे कहीं से भी न्यू नहीं देखने का, जो आपने ऑलरेडी देखा है यू हैव टू सी दोज नोट्स ओनली, एंड यू डोंट हैव टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। कोई बोलेगा नया वीडियो आया है, ये पढ़ेगा तो तेरे को सब आ जाएगा, तू मस्त एग्जाम लिख पाएगा, कुछ भी बोलेगा, तूने जो पढ़ा है वही करने का और वही देख के जाने का। तो अपना जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक का आपने जो भी पढ़ा है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर समरी नोट्स में आपको पढ़ना है तो समरी नोट्स, बेसिकली जो भी आपने रीड किया यू हैव टू गो थ्रू एंड रीड एवरी सिंगल थिंग, डोंट स्किप एनीथिंग, बिकॉज आप लास्ट डे पे पढ़ते हो, अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वापस याद आएगा, बिकॉज आप अकाउंट्स भी करोगे, अकाउंट्स के बाद लॉ कर रहे हो तो बीच में ब्रेक है, तो आप गो थ्रू एवरीथिंग। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा कि आपने क्या पढ़ा था, एंड यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर। सो रीड एवरीथिंग, डोंट स्किप आउट ऑन एनीथिंग। एंड लास्ट डे पे जो है उसमें जब भी बिफोर द एग्जाम मैंने जो बोला आपको कि आपको रिविजन ऑफ चार्ट्स या समरी नोट्स करना है, उसमें what you have to do is basically you will have to remember, like go through all the points, such offer, a general offer, special offer, counter offer, just quickly going through what are the different kinds of things, what are the bullet points, so that अगर एग्जाम में आपको पूछा तो you will know what to write in that answer. Okay, so this is how it is going to be. Now अभी मैंने पूरा पढ़ लिया, मैं गई एग्जाम में। एग्जाम में आपका एक तो पहले 2 है एग्जाम पेपर में, सेक्शन ए आएगा 60 मार्क्स का, जो आपका ये होगा लॉ होगा, 40 मार्क्स का आपका कम्युनिकेशन आएगा। इसमें आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। देन आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्ट एनी out of 5 questions you have to attempt any 4 questions, तो आपको 4 questions attempt करना है। so you have to write total of 5 questions in law which will be 12 marks each, तो आपको आपका 60 marks का attempt होगा। and आपका सेक्शन बी होगा जिसमें क्वेश्चन 7 इज योर कंपलसरी क्वेश्चन, एंड अगेन आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 3, सो 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो आपका 40 मार्क्स का सेक्शन बी होगा। अभी जब भी आपको ये आपका एग्जाम पेपर है विच यू नो नाउ, आपको एवरी एग्जाम के पहले आपको दिया जाएगा 15 मिनट्स का प्रिपरेशन टाइम। दिस इज अ न्यू थिंग विच इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस्ड, and which is a very good thing because we never had that option. So you are getting your 3 hours plus you are getting that 15 minutes extra जहाँ पे आपके पास आपका question paper होगा, but you will not have your answer paper to write anything, which means that you have to go through the questions and you have to decide how to go about writing your paper. What will you do in that 15 minutes time is कि आपका जो भी क्वेश्चंस कंपलसरी है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चंस है जो कंपलसरी है, वो तो लिखना ही है। डिफ़िकल्ट पूछा है, इजी पूछा है, डजेंट मैटर, मुझे वो लिखना ही है। आई हैव टू अटेम्प्ट इट।
correct? So what is a smarter thing to do is, when you get that 15 minutes time, read the questions which are optional. Don't read the question which is compulsory first. Read the question which are optional first and decide कि ये जो 5 questions है इसमें से which 4 questions should I write. That is very very important, so that when once you get your answer sheet, जब भी आपका 3 hours है, 3 hours में आपको बैठ के सोचना नहीं पड़े कि अच्छा अभी मैं ये ऑप्ट करूँ या ये ऑप्ट करूँ, इसका आंसर आता है कि नहीं आता. हम लोग के टाइम पे हम लोग एग्ज़ाम आंसर दोनों साथ में आता था, तो हम लोग को एक बार पेपर लेने के बाद वी हैड टू स्पेंड दैट 10-15 मिनट्स डिसाइडिंग ओके विच क्वेश्चंस आई नो, विच वन आई वांट टू आंसर, विच वन आई डोंट वांट टू आंसर. यहाँ पे यू गेटिंग दैट 15 मिनट्स. सो फर्स्ट रीड द ऑप्शनल क्वेश्चन बोथ फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड डिसाइड कि आपको क्या आंसर लिखना है एंड क्या आंसर नहीं लिखना है. आपको कौन सा आंसर आता है कौन सा नहीं आता है, आप मार्क कर सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे इतना ठीक से आई एम नॉट वेरी श्योर केस स्टडी है, अच्छा आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू आंसर, ओके देन आई विल आंसर 2, 4, 5 and 6 or 7, whatever you are going to answer, just decide which you want to answer in that 15 minutes time, so that when you start writing you don't have to kind of waste time thinking कि मैं कौन सा लिखूँ. Then obviously read question 1 because वो तो आपको लिखना ही है, and start your paper with the question जिसका आंसर आपको बेस्ट आता है. मतलब मैंने पढ़ा कि अच्छा ये कंपनीज एक्ट का मुझे पूछा है, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ टू राइट द आंसर, सो यू स्टार्ट राइटिंग विद दैट. जब भी आप एग्जाम में लिखते हो तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर है. यहाँ पे आपका मार्जिन है, आप यहाँ पे एक मार्जिन डाल देंगे एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका पार्ट ए एंड देन यहाँ पे आप आंसर लिखोगे. अगर आपका क्वेश्चन का आंसर लिख के हो गया, एंड ऑफ द पेज ये है, यहाँ से क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है, देन यू कैन स्टार्ट इट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट लाइक ये इतना लाइन छोड़ के नेक्स्ट पेज से आप लिखने का स्टार्ट कर सकते हो. सो दीज आर ऑल फॉर्मेटिंग थिंग्स अगर आपको वैसे करना है तो. बट इन दैट 15 मिनट स्टडी टाइम व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टू गो थ्रू द ऑप्शनल क्वेश्चंस फर्स्ट, डिसाइड विच ऑप्शनल क्वेश्चंस यू वांट टू अटेम्प्ट, एंड थर्ड थिंग इज कि कौन से ऑप्शनल एंड कंपल्सरी मिला के विच क्वेश्चन आई कैन राइट द बेस्ट. सो यू स्टार्ट राइटिंग विद द the question which you know the best, so that आपका भी एक मूड सेट इन हो जाता है in writing the paper, that stress anxiety is there. So आप एक बार लिखने का स्टार्ट करोगे and you start writing and you know the answer, you will also feel a lot more confident. And other than that, I wanted to tell you your paper pattern for your examination for foundation. You're very lucky that the paper pattern is very very standard. नॉर्मली इट डजेंट चेंज, बट इंस्टीट्यूट है उसका सटक गया, उसको चेंज करने का है तो वो चेंज कर सकता है, बट जनरली योर पेपर पैटर्न विल रिमेन द सेम. तो ये ही फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट पुट डाउन द पेपर पैटर्न एज टू हाउ इट विल बी, सो दैट यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं. आपका जो क्वेश्चन 1 है, जो कंपलसरी क्वेश्चंस है, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ 4 मार्क्स ईच. तो आपको 3 क्वेश्चंस पूछेंगे और 4 मार्क्स का, तो टोटल आपका हो गया 12 मार्क्स. इसमें एक होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी, सेकंड विल बी योर कंपनीज एक्ट केस स्टडी, एंड थर्ड विल बी सेल ऑफ गुड्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो कंपलसरी क्वेश्चन में आपका केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, और फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड फॉर कंपनीज एक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ फुल्ली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा एंड LLP एक्ट आएगा. दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे LLP एक्ट पूछता है. LLP एक्ट का एक ही क्वेश्चन आता है एंड दैट टू ऑप्शनल. सो मैनी पीपल प्रिफर टू नॉट do LLP एक्ट, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग टू डू, बिकॉज LLP एक्ट एकदम छोटू सा एक्ट है. 1 घंटे में यू विल बी एबल टू फिनिश योर LLP एक्ट मैक्स. अभी LLP एक्ट का 5 मार्क का क्वेश्चन आता है विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब लोग ने किया, यू नो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आया है, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट इट, अगर आपने LLP एक्ट नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन 2 आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. एक क्वेश्चन आपका निकल गया तो आपको बाकी के क्वेश्चंस कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा. सो LLP एक्ट का क्वेश्चन आएगा, एक ही आएगा, क्वेश्चन 2 भी आएगा 5 मार्क के लिए.
ensure that you read the LLP Act and go. The questions are very standard, it's very simple questions which are being asked. उसमें कुछ case study नहीं है, descriptive ही आता है LLP Act में, and it's very similar to your Companies Act and Partnership Act. So LLP Act and Contract Act का descriptive questions आता है for 7 marks and 5 marks. Then question number 3 में Partnership Act ही आता है ज़्यादातर. इसमें you will have A का 1 and 2 में option 2 marks का जो question है दोनों descriptive है, but you have an option to write either one of them. Then B is Partnership Act, again 4 marks का descriptive question, and C is Contract Act, which is a case study type of question for 6 marks. So third question is mainly your Partnership Act. Now coming to the fourth question is your Sale of Goods Act and Partnership Act. यहाँ पे Sale of Goods का आपका descriptive type of question आएगा और Partnership Act का case study type of question आएगा. So what is the importance of doing the entire thing कि आपको क्या करना है? You can decide in advance. So for example, we'll finish this and I'll tell you. Question number 5 है Sale of Goods का Act आता, Sale of Goods Act का case study type of question आता है and Companies Act का descriptive type of question आता है. Again, Companies Act का descriptive type of question is easier to answer because it's very like some of the things you've already done in your 12th also, and it's not very difficult, तो वो भी आप कर सकते हो attempt. Question 6A आपका आता है Contract Act का descriptive question, 6B आता है Partnership Act का descriptive question, and C आता है Companies Act का case study type of question. So this is how your paper pattern, it's a mix of case study and descriptive, but there are a lot of descriptive questions as compared to your case study type of questions. आप इंटर में जाओगे तो देखोगे पूरा पेपर केस स्टडी होता है. सो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन दिया है. इन माई व्यू व्हाट आई फील इज, जब भी आप एग्जाम में दे रहे हो तो देखो क्वेश्चन 1 तो है, आपको वो लिखना ही है. नाउ question 2 I feel normally is like a question which you can answer because LLP Act is simple and Contract Act के theory के साथ आता है. Contract Act तो अपन ने एकदम मस्त पढ़ लिया है तो वो तो अपने को आना ही है. So question 2 is again something which you can write. Now question 3 and question 5 ना, उसमें बड़े बड़े 2 questions नहीं पूछ लिए, 7 मार्क 5 मार्क या 6 मार्क के 2 questions वैसा नहीं पूछा है. छोटे छोटे 3 question हैं, तो इसमें से 5 में से 3 लाने का, 4 में से 3 लाने का, 3 में से 2 लाने का, वैसा करके थोड़ा ऐड करके ज़्यादा मार्क्स मिलता है कंपेयर टू यू राइटिंग 6 मार्क्स के 2 थ्योरी क्वेश्चंस. करेक्ट. सो क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 3 में आपको ऑप्शन भी है, सो यू वुड वांट टू राइट 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6. देन कमिंग टू, हाँ, तो अभी आपको जो ऑप्शन चाहिए आपको क्वेश्चन 4 एंड 5 में से देखने का, क्योंकि उसमें एक डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी. सो ये दोनों में से आपको डिसाइड करना है. इसमें सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और कंपनीज, ये 3 एक्ट ही है, तो इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कैसे लिखना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द पेपर इज एंड हाउ द क्वेश्चंस आर. दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन हाउ द पेपर पैटर्न इज, बट यू कैन ऑब्वियसली जब भी आप एक्चुअली एग्जाम में जाते हो एंड यू सी क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी डिफिकल्ट, यू मे वांट टू डू क्वेश्चन 4 एंड 5, सो इवन दैट इज ओके. बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ एज टू हाउ द क्वेश्चन पेपर इज, सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपको कैसे लिखना है योर क्वेश्चन पेपर, विच क्वेश्चंस यू वांट टू अटेम्प्ट एंड हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन केस स्टडी एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ आंसरिंग द क्वेश्चंस. अभी मेरे को पेपर आ गया, मैंने डिसाइड कर लिया अच्छा मुझे ये क्वेश्चंस लिखने का है. नाउ आई हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. हाउ विल आई आंसर द क्वेश्चंस? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 12th का एग्ज़ाम नहीं है, बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं है. लंबा 4-5 पेज भर के लिखेंगे, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. whatever you write, the content that you write and the content that is asked, that has to be in sync. अगर आपको जो पूछा है उसका आंसर if you write, and if you write the correct answer, even if it's for 6 marks and you've written 3 lines, then it will be your correct this thing. If it's a correct answer, you will get your marks. You don't have to write like very long answers to get more marks. Okay, so descriptive type of questions, write what is required to be written. Don't just go with the flow and चल मुझे ये भी पता है, ये भी लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ, वैसा नहीं. जितना पूछा है उतना ही लिखने का, because otherwise पेपर छूट जाएगा. So descriptive में whatever is asked, write accordingly. You don't need to like write a lot of pages to get a lot of marks, is what you have to remember. Section number अगर आपको याद है
एंड इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छा इसका सेक्शन ये अवॉइडेबल होगा तो सेक्शन 19 ही है. इफ़ आई नो वेरी क्लियरली कि ओके दिस इज अंडर दिस सेक्शन ओनली, then I will go ahead and write the section number. In CA Foundation and in CA Inter they do not expect you to write the section numbers. तो अगर नहीं आता है तो just write as per the Indian Contract Act, as per the Sale of Goods Act, just write that. सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा ईयर का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा ईयर, वो सब याद रखने का. बाकी सेक्शन नंबर याद है, कॉन्फिडेंट है तो लिखने का. गलत सेक्शन नंबर लिख के आया तो आपका मार्क्स कटने वाला है. सो यू डोंट हैव टू राइट द रॉन्ग सेक्शन नंबर, यू विल हैव टू राइट द करेक्ट सेक्शन नंबर. बट इफ़ यू डोंट राइट द सेक्शन नंबर डज नॉट मीन कि आपका मार्क्स कटेगा. केस स्टडी का भी नाम अगर पूरा आता है तो पूरा लिखो. अगर आपको थोड़ा ही पता है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल उतना ही याद है तो खाली उतना ही लिखने का. वट एवर यू रिमेंबर यू राइट. The section numbers and case studies, if you are writing a very good paper, if you write section numbers and case studies तो आपको हेल्प होता है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप बैठ के उसको भी मगअप करो. याद है तो लिखो, नहीं याद है तो इट्स फाइन. नाउ कमिंग टू द केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको 3 पॉइंट आंसर लिखना है. हाउ इज द 3 पॉइंट आंसर गोइंग टू बी? फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू, आपने सेक्शन अपने केस स्टडी पढ़ा, यू वंस यू रीड द केस स्टडी यू विल नो कि अच्छा ये कौन से सेक्शन कौन से एक्ट के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं. सो यू हैव टू आंसर इट. द फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. एज पर सेक्शन दिस ऑफ द एक्ट इट इज स्टेटेड दैट blah 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 depending on what the question is. Once you have written what the law is, the law pertaining to the question that has been asked. In the second paragraph you will write the facts of the case which is asked in the question. Please do not copy the entire facts which is given in the question paper. You will have to write the facts based on your understanding of the facts. वो जो क्वेश्चन में है ना वो एग्जामिनर को भी पता है, उसने भी पढ़ा है, तो वो पूरा का पूरा छापने की ज़रूरत नहीं है. एग्जामिनर वांट्स टू नो आपको क्या समझा है फैक्ट्स पढ़ने के बाद. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो यू विल हैव टू राइट द फैक्ट्स इन अ लाइन और 2. ऐसे बहुत लंबा भाषण लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइन और 2 में लिखने का. Facts of the case in your own words, do not copy it from the question paper. And the third part is writing down how the law is going to impact the facts in the current case and what is your answer depending on what the question has been asked. So this is the 3 points that you have to remember. First you have to write the law. Secondly you will have to write कि अपना facts of the case क्या है. And third में how is the facts of the case being impacted by the law in the current scenario and what is the answer to the question that has been asked in the exam. तो ये टाइप से आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करना है. नाउ आई एम नॉट श्योर इफ यू नो व्हाट इज देयर इन द पेपर पैटर्न फॉर योर कम्युनिकेशन पार्ट, बट डिसाइडिंग बिटवीन वेदर यू वांट टू स्टार्ट योर पेपर विथ लॉ or communication is purely a choice based on your comfort. If you are comfortable with English then you can start with English. If you think कि you know I am more comfortable with law, मुझे English में इतना नहीं comfort है, then you can start with law. Personally if I had to give the exam that you are giving, I would first start writing with English because I am very much comfortable with English and I feel कि वो सब जो आपके क्वेश्चन का पेपर पैटर्न, आई होप यू नो हाउ द पेपर पैटर्न इज. इफ यू डोंट यू कैन जस्ट पिंग एंड आई विल टेल यू 1 सेकेंड. हाँ, तो इसमें मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, इंग्लिश का पेपर पैटर्न इफ़ यू डोंट नो जस्ट लेट मी नो, आई विल शो यू. आई हैव द पेपर पैटर्न विथ मी. सो इंग्लिश में आपको क्या करना है, हाँ, सो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस वैसा सब है. 1-1 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ऑप्शनल है उसमें. सो इट्स ईजियर टू राइट डाउन एंड यू फिनिश दैट राइटिंग दैट डाउन क्विकली एज कम्पेयर टू लॉ. दैट इज़ माई यू नो फीलिंग एंड माई अंडरस्टैंडिंग. योर्स मे बी डिफरेंट. तो मैं इंग्लिश के साथ स्टार्ट करती थी. यू मे स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ़ यू वांट टू. देयर इज़ नो हार्म इन स्टार्टिंग विथ लॉ फर्स्ट एंड डूइंग कम्युनिकेशन लेटर, बट आई वुड हैव स्टार्टेड विथ इंग्लिश फर्स्ट. तो मेरा वो 40 मार्क्स सिक्योर हो गया. देन आई विल कम टू लॉ एंड देन स्टार्ट राइटिंग लॉ फटाफट. तो एक बार वो ख़त्म हो गया तो आई कैन पुट माई फुल अटेंशन ऑन लॉ. बट इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग इंग्लिश और आप बड़ा बड़ा उधर लिख के बहुत टाइम वेस्ट करोगे एंड देन लॉ के लिए टाइम नहीं बचेगा, then you have to start with law. So it depends purely on your comfort with the English language and with law, and दोनों में से आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा comfortable है.
Okay, if you want to see the communication का paper pattern, do let me know. Then coming to your Divya, your question, paper pattern, yes, institute can change. I think जो May 18 था, no sorry, November 18 and May 19 was different, so they can change if they want to. Generally at foundation level they do not change much, but अगर वो लोग को करने का है तो वो लोग कर सकते हैं. ऐसे होता है पास्ट में चेंज. मैंने जितना एग्जाम्स दिया था मेरे टाइम पे कभी चेंज नहीं हुआ था, बट हो सकता है अगर करना है. सो यू, दिस इज जस्ट प्योरली रेफरेंस. इससे आपको कुछ ये नहीं होगा, खाली आपको आइडिया आएगा कि कैसे केस स्टडी और कैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे. फॉर यू टू डिपेंड. अगर मुझे लगता है कि मुझे सेल ऑफ गुड्स नहीं इतना कंफर्ट है, मुझे पार्टनरशिप कंफर्ट है, देन आई विल टारगेट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई विल नॉट टारगेट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे 6 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इज ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. करेक्ट. सो डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट. एंड पेपर पैटर्न दिया है, चेंज हो भी गया ना तो डोंट पैनिक, इट्स ओके, कुछ नहीं होता है. क्वेश्चन 100 मार्क का ही आने वाला है सब, तो चेंज हो भी गया तो डजेंट मैटर. ओके, सो डोंट पैनिक. तो वो हो गया. हाँ, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. एनी अदर क्वेश्चंस, देन वी कैन डिस्कस दैट फर्स्ट बिफोर वी गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और एक बार जब भी लिख के आओगे लॉ का पेपर, तो आके वापस बैठ के मार्क्स टोटल करने का, वो सब टाइम पास नहीं करने का, चुपचाप नेक्स्ट डे का मैथ्स का प्रिपरेशन चालू करने का. जो लिख के आए, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, हार्ड था, डिफ़िकल्ट था, इजी था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. एक बार लिख लिया ना तो भूल जाने का, नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करने